Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are continuing the topics of 16th of April. Andaman and Nicobar Island through a strategic lens. So all the important islands are mentioned in the map. Coco Islands that has been given to India, to Myanmar. It is in the northern part of the Andaman and Nicobar Island. Sabang, it is northern part of the Sumatra and Sunda. Kara Canal, proposed Kara Canal in the Thailand region. Hambantota Port, Chennai. Here it is Kachativu Island, Gulf of Mannar, Park Strait, Bay of Bengal, Chittagong Port, Sitwe Port. Island is 1300 kilometers southeast of Indian mainland, Malacca Strait. It is a most important choke point in the Indo-Pacific region. Indonesia 19 miles southeast, Indira Point यहाँ से, और Cocos Island Myanmar. It is only 18 miles northernmost tip. Kara Canal was built connecting the Gulf of Thailand with the Andaman Sea. Gulf of Thailand with Andaman Sea. It was proposed as an alternative route to the Malacca Strait, but proposed हुआ नहीं है. Islands share 4 international maritime zone delimitation: Myanmar, Thailand, Indonesia, Bangladesh under the UN clause. अब पहली बात है कि why it is important. It is near to the Malacca Strait. It can be used as a base by the Indian Navy, Indian Air Force to monitor this region, or because most of the 30-35% of the trade comes from this region, Malacca Strait. Further, PLN Navy and their asset is seen in the Indian Ocean region. So, if we are developing Great Nicobar, we can monitor such activities. Development of island and strategic infrastructure is a multi-dimensional project and agencies. So, the proposed अभी पहली बात 75,000 crore have been there for making this island a important navy, air force and army base, defense. ऑलरेडी ट्राई सर्विस कमांड यहाँ पर है, लेकिन साथ साथ बाकी टूरिज्म को प्रमोट करने की बात हो रहा है, सर्वेलेंस, उसके बाद फिर डॉकिंग यार्ड, एमआरओ, सबके लिए इसको बात किया जाए. तो व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट एंड फ्यूल शॉर्टेजेस, ऑलरेडी दे हैव द मिक्स्ड फोर्सेस इन दिस रीजन, लेकिन उसके बाद और भी एरियाज में काम कर सकते हैं. मैरिटाइम सर्विसेज, रोड नेटवर्क, हाई स्पीड इंटर आइलैंड फेरी सर्विसेज, सी प्लेन, इको फ्रेंडली होना चाहिए. लेकिन ये तो बात हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन आई विल ऐड वन थिंग दैट दिस शुड बी डन, बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड इज पार्ट ऑफ द सुंडास, और जो 4th हॉटस्पॉट रीजन है इंडिया में. Many of the endemic species are there, so the development poses threat to such biodiversity. That is why it is imperative for the government to initiate such kind of measure in a very cautious manner, rather than कि आप सिर्फ डेवलपमेंट करो. एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये तो कोको आइलैंड है, तो दिस इज ओन्ड बाय म्यांमार.
So this is Coco Island. There is one more island by the name Cocos Island. उसमें ऐसे है Cocos Island, जिसको we also know it by another name which is called the Keeling Islands. So this is the territory of Australia. कोकोस। तो हाँ, कोकोस ऑस्ट्रेलिया की है। ये जो नॉर्थ अंडमान में है, दिस इज कोको आइलैंड। और कोकोस आइलैंड लोकेटेड कहाँ है? वी कैन से इट इज टुवर्ड्स साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडोनेशिया। यस। An eye for an eye only ends up making the whole world blind. So directly related to the Israel Hamas, Israel Iran nuclear doctrine, wider conflict, then competitiveness, negative competition between the bipolar countries, US, China, climate change related, society connect, friction और डिवीजन, उसमें बात कर सकते हैं। और ऐड करना है तो डायरेक्ट। आई थिंक यही पॉइंट्स हैं। Why it is hard to hit Israel with drones and missiles? So despite using 300 enemy drones, Israel have managed to intercept 99% of the missile. क्यों ऐसा है? क्योंकि उनके पास आयरन डोम है। ऐसे काम करते हैं, जब फायर होता है तो रडार सिस्टम डिटेक्ट्स द रॉकेट एंड ट्रैक्स इट, एंड कंट्रोल सिस्टम सेंड्स द डेटा पॉइंट, और लॉन्चर फायर्स द मिसाइल टू इंटरसेप्ट। अलग अलग नाम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेविड स्लिंग, इट इज अ मीडियम रेंज एरो and Arrow 3. Each interceptor is $3 million. Arrow 3 is faster, hypersonic missile. तो from the word we can derive David Sling, जो रॉक और स्लिंग अगर देखोगे कभी तो इट कैन बी डिराइव्ड लाइक दैट। एरो 2 भी। लेकिन एक बस आई विल हाइलाइट वन थिंग कि ईच इंटरसेप्शन अटेम्प्ट रफली कॉस्ट $40,000, और जो ओवरऑल इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड वॉर, it is skewed much more towards the Iran rather than Israel. क्यों है? क्योंकि अभी बोला गया approximately $1.5 billion of worth of missile and defense was used to safeguard itself from Israel, from Iran. लेकिन ईरान ओनली यूज $100 million, 100-200 million मात्र। तो इसका जो स्केल है कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी कैपेबिलिटी में वो वापस से भेज सकते हैं मिसाइल, ड्रोन्स एक्सेट्रा एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली है। दैट इज वाई जब वॉर के समय में बोलते हैं कि द कॉस्ट ऑफ द वॉर शुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ईरान, देन ओनली इन द लॉन्गर रन Israel will get a much एज इन द वॉर। इंडिया के हिसाब से बात किए तो इंडिया पर ऐसा कुछ है, तो इंडिया हैज अ लैंड बेस्ड 2 tier बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, BMD इसको बोलते हैं। और इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग लैंड बेस्ड BMD, तो उसे मीडियम टर्म भी होगा, लॉन्ग टर्म भी होगा और शॉर्ट टर्म भी। एंटी सैटेलाइट ऑलरेडी इंडिया के पास है, ASAT, विच वॉज लॉन्च इन 2019 एंटी सक्सेसफुल। BMD-1, BMD फेज 2, इसमें 3000 किलोमीटर तक उसमें रेंज है। फेज 1 में क्या क्या रहेंगे, तो उसमें पृथ्वी एयर डिफेंस, और छोटे वाले भी इंडिया के पास 550-180 किलोमीटर। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंडो एटमोस्फेरिक, एक एक्सो एटमोस्फेरिक। एक्सो मतलब कि ये जो मिसाइल है, इट उसका जो ऑल्टीट्यूड है, इट रीचेस बियॉन्ड द एटमोस्फेयर, तो उसको एक्सो बोल देंगे। अगर ऑल्टीट्यूड विद इन द एटमोस्फेयर है तो एंडो। तो इसमें टायर 1 तो आपने बता दिया, 2 टायर्ड है। तो सेकंड टायर में वी हैव द अश्विन एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स। तो फर्स्ट टायर में वी हैड पृथ्वी एयर डिफेंस व्हीकल सिस्टम, सेकंड में वी हैव अश्विन एडवांस्ड एयर डिफेंस। हम्म। और उसमें इंडिजिनस होगा, रेडार सिस्टम इंडिजिनस,
मिसाइल भी इंडिजिनस, कंट्रोल सिस्टम भी इंडिजिनस। और दूसरा कि इंडिया इज डेवलपिंग, अप्रैल 2023 में डीआरडीओ इंडियन नेवी ने लॉन्च किया पहली बार सी बेस्ड इंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्टर। उसे क्या हुआ कि इंडिया पर लैंड बेस्ड है, वो सी बेस्ड भी कर सकते हैं। हाउएवर लास्ट में क्वेश्चन रहता है कि कभी भी वी शुड नॉट फोकस सोनली ऑन द डिफाइन डिफेंस सिस्टम, बिकॉज डिफेंस सिस्टम इज वेरी कॉस्टली। और जो एनिमी के एक प्रोजेक्टाइल है, हो सकता है वो $1 मिलियन के लो, लेकिन डिफेंस सिस्टम $5 मिलियन के लो, तो इट इज नॉट suitable for the long run. Government to open remedial measure to mitigate the impact of the Israel and Iran war. कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा वी आर इन टच विद द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। हर एक गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होती है, उसमें द गवर्नमेंट इज इन प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द मिटिगेटिंग ऑफ सोल्यूशन। कैसे वो प्लेटफॉर्म दे रहे होंगे और वो चेक करेंगे कहाँ कहाँ लॉजिस्टिक सिस्टम प्रॉब्लम हो रहा है एंड हाउ इट कैन बी रेक्टिफाइड। क्योंकि मोस्टली वी आर डिपेंडेंट, 80% ऑफ द इंडियन ऑयल आर डिपेंडेंट ऑन द वेस्ट एशिया। डायस्पोरा भी वेस्ट एशिया के अंदर में। थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएई आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू क्लोजली मॉनिटर सिचुएशन इन द वेस्ट एशिया और मिटिगेट कैसे करें। तो इंडिया ने बात किया कि देयर शुड बी डी एस्केलेशन एंड द टॉक शुड बी डन थ्रू डिप्लोमेटिक मेजर्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में इट इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल सपोर्ट देते एक्सपोर्ट फर्म फॉर द ओवरसीज ट्रेड एंड प्रेजेंस। एग्जाम्पल केमिकल्स के लिए अलग हो गया, फार्मास्यूटिकल के लिए अलग हो गया, लेदर के लिए अलग हो गया, एपरल, सिंथेटिक रैन उसके अलग। उसका काम ये होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से कंट्री में आप प्रमोट कर सकते हैं अफोर्डेबल रेट में, कैसा टेक्निकल असिस्टेंट होना चाहिए और इंडस्ट्री का क्या मैंडेट है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन एनजीओ। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्लीचिंग ऑफ द कोरल्स, तो उसका मिटिगेशन एक होता है कि जो शॉर्ट टर्म और जल्दी से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड मिटिगेशन ये है, रादर देन वी ऑलवेज टॉक अबाउट लीगली कि एनडीसी फॉलो करना चाहिए, पेरिस क्लाइमेट के तरफ में काम करते रहना चाहिए। ये बात हो रहा है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। तो बायो रॉक जो पूछा हुआ था पीटी में, इन गुजरात कोस्ट इट वाज डेवलपिंग इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इट इज इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू डिपॉजिट द कैल्शियम कार्बोनेट आयन ऑन द कोरल। उसके कारण कोरल वापस से बनते हैं और इट अट्रैक्ट्स द पॉलिप्स और वापस से बायोडाइवर्सिटी जनरेट हो सकता है। उसका एक और एग्जांपल है कोरल फोर्ट। Laboratory grown corals are grasping at biodegradable straws in effort to restore what some call as rainforest of the sea. Substance called polyhydroxyalkanoid biopolymer. It can be also used to create bio. The coral cage consists of limestone disc surrounded by 8 vertical feet. वो केज के कारण it can be developed as a bio rock, as a laboratory grown corals. Mr. Piassano and his partner Kirk Doston has developed Coral Fort, claiming the small biodegradable cage made in part with drinking straws, boosting the survivability rate of the transplanted coral to 90%. तो प्लास्टिक को भी यूज किया यार।
तो कीवर्ड यहाँ पर हो गया कि बायो रॉक, एंड अनदर कीवर्ड इज पूरल फोर्ट. Further, regarding the Parkinson disease, there is no treatment available to slow or halt the Parkinson disease. It is a neurodegenerative disease. जो उसका अर्ली सिम्टम होता है थोड़ा भूलना, और मोटर जो वेन्स है मोटर वो काम करना बंद कर जाता है धीरे धीरे. इट बिकम्स लेस इफेक्टिव. डिसेबिलिटी इंक्रीजेस. मेनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू पार्किंसन, एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक. तो इसमें बात हो रहा है कि जीन वेरिएंट जो दैट शोकेसेस द पार्किंसन डिजीज, इट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट इट, और कैसे इसको रिट्रेस कर सकते हैं. पहली बात है जीन रिक्वायरमेंट के लिए वी नीड इंफॉर्मेशन अबाउट फैमिली ट्री, क्लिनिकल डेटा एंड डीएनए सैंपल. फिर जो पैथोजेनिक जीन जेनेटिक वेरिएंट और डिजीज डेवलपमेंट उसको जोड़ सकते हैं बाद में. फिर under the linkage analysis, my team and I identify a new gene mutation, Parkin disease, RAB32, SIR71ARG. Its mutation is linked to Parkinson in 3 families and found in other countries. It is the first gene that directly connect the dot between the prior linked discovery. Finding the molecular blueprint for the familial Parkinson disease is the first step to fixing the faulty mechanism behind the disease. उसे पता लग सकता है कि क्यों डिजीज हो रहा है, फैक्टर्स क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, या फिर बाकी जो उनके जो जेनेटिक अगर कॉज है तो बच्चे में भी है कि नहीं, वो पता लगा सकते हो. Each person variant has 27 million variant, 6 billion building blocks that make up the gene. और भी येट डिस्कवर करना बचा. तो दिस शोकेसेस की हाउ जीन कैन बी यूज्ड, और जीन मॉडिफाई भी कर सकते हो, इसको मिटिगेट भी कर सकते हैं, उसको कट एंड पेस्ट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CAS9. तो जीन एडिटिंग इन द लॉन्गर रन कैन बी यूज टू ट्रीट द पार्किंसन डिजीज, प्रोवाइडेड दैट कि पता लग सके कि जीन कौन से. एक पता लगा लेकिन और भी फैक्टर होंगे, और भी जीन होंगे दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉज ऑफ द पार्किंसन डिजीज. Aviation counts for global 2.5% of CO2 emission. ऐसा क्यों? क्योंकि overall they are using aviation fuel that is less refined as compared to normal petrol. दूसरा चार्टर्ड प्लेन यूज होता है मोस्टली, इसमें से सिर्फ 1 पैसेंजर 5 लोग जाते हैं एंड इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ फ्यूल. तो इसका सोल्यूशन क्या है लॉन्गर टर्म में, कि अगर ज़्यादा रिफाइंड यूज करेंगे तो कैलोरी वैल्यू कम होगा, इट विल बर्न इफेक्टिवली, लेकिन कॉस्ट ऑफ फ्यूल बढ़ जाएगा. इसलिए डीजल सस्ता है, पेट्रोल ज़्यादा महंगा है, क्योंकि इट इज़ मोर रिफाइंड. तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हाइड्रोजन फ्यूल एक सोल्यूशन है, लेकिन वो समय लगा. ईवी नहीं हो सकता क्योंकि ईवी विल रिक्वायर्ड बिग बैटरीज और इट विल नीड ह्यूज स्टोरेज, दैट इज नॉट पॉसिबल. अगर स्टोरेज चली जाए, अगर उतने लेवल पे चाहिए तो पावर जनरेट उतनी लेवल पे करना पड़ेगा, एंड इट विल मेक एरोप्लेन वेरी हैवी फॉर टेक ऑफ. तो पॉसिबल नहीं है. सोलार पॉसिबल था, लेकिन उसमें सिर्फ 1 पैसेंजर एरोप्लेन में कर सकते सोलार. सोलार एरोप्लेन इज यूज्ड फॉर क्लाइमेटोलॉजी, तो सिर्फ 1 पैसेंजर प्लेन है, इतने बड़े स्केल पर नहीं कर सकते. तो सिर्फ हाइड्रोजन बचा लॉन्गर रन, और न्यूक्लियर बचा. तो न्यूक्लियर के लिए
वी नीड टू हैव अ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो 500 मेगावाट से भी कम है, 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, उससे फिर और छोटा करके 30-40 अगर लाएंगे तब जाके वी कैन यूज इन एयरक्राफ्ट। तो हो सकता है अभी 50 ईयर्स 60 ईयर्स लगे। सो एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है इट इज कलरलेस, कंबस्टिबल होता है, अगेन स्ट्रेट रन अप पेट्रोलियम डिस्टिलेट लिक्विड होता है जिसको डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। एंड इसके भी दो ग्रेड्स हैं इंडिया में जो हम यूज कर रहे हैं। सिविल कमर्शियल एविएशन सेक्टर में वी हैव वन जेट A1 एंड जेट A, तो दीज आर टू ग्रेड्स ऑफ द ATF विच आर यूजिंग, एंड दोनों में दीज आर केरोसिन टाइप फ्यूल्स, हम्म। तो ब्लेंड गैसोलीन एंड केरोसिन। ठीक है। Oil price fell after Iran's attack. That suggests Iranian were perhaps coordinating with US and Israel. तो कैसे? ऊपर ऊपर दिखता है कि लड़ाई है, लेकिन बैक चैनलिंग में क्या चल रहा है? तो एक इज अ वेल्थ मैनेजमेंट फर्म, हो सकता है सही है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल इसमें लिखा है कि दे वर कोऑर्डिनेटिंग विद इजराइल, क्योंकि हर एक मिसाइल सिस्टम वाज इंटरसेप्टेड बाय इजराइल। ऐसे कैसे हो सकता है? द इंफॉर्मेशन was precise enough to allow enable Israel to activate a general lockdown of the key services। और टाइमली के अनुसार उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन पर इंटरसेप्ट किया। नियरली ऑल मिसाइल एंड ड्रोन हैव इंटरसेप्टेड, वेरी लिटिल डैमेज। हो सकता है कि टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ द पब्लिक, पॉपुलिस्ट मेजर लेने के लिए ईरान ने ऐसा किया, और इसराइल को बस दिखाया कि रेट्रीब्यूशन क्या होता है अगर उनके जनरल मिलिट्री कमांड ऑफ द कुड्स फोर्सेस अगर को असैसिनेट करने से। पॉसिबिलिटी ऐसा, क्योंकि ओवरऑल इट विल इम्पैक्ट द ग्लोबल सप्लाई चेन। ऑलरेडी ह्यूदी पायरेट्स हैव बीन टारगेटिंग द गल्फ ऑफ एडन रीजन, उसी कारण लॉजिस्टिक सिस्टम में कॉस्ट इंक्रीज हुआ, इंश्योरेंस इंक्रीज किया, तो अल्टीमेटली द ब्रंट इज फेस्ड बाय द कंज्यूमर इटसेल्फ। हायर प्राइस के कारण ट्रेड डिफिसिट बढ़ेगा, रुपीज डिप्रिशिएट करेंगे, रिड्यूसिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज, फॉरेक्स रिजर्व कम होगा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के कारण गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे। यस। तो जापान जो है दे हैव वहां पे डिमांड रिगार्डिंग द कैश सप्लाई। अब जापान हर साल 20 ईयर्स के अंदर में इट रिप्लेसेस होल करेंसी। जो ट्री से रिप्लेस किया जाता है, द ट्री इज यूज्ड, इट वाज फाउंड इन जापान, लेकिन ओवर कंजम्पशन कारण वहां पे ट्रीज खत्म हो गए, तो दे आर नॉट नो आउटसोर्सिंग टू अदर कंट्री सच एज नेपाल। दिस शोकेसेस कि जो डेवलप कंट्री है अंडर डेवलपमेंटल थ्योरी कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को विद द यूज ऑफ मनी, विद द यूज ऑफ इंसेंटिव। अर्गेली, Japan's supply of Mitsumono, a traditional paper used to print his banknote, was running low. पेपर स्टार्ट विद वुडी पल्प और फिर इसको यूज किया जाता है। टी ग्रोइंग टेरेन में होता है वो, सिर्फ उनकी गुड ड्रेनेज चाहिए, सनशाइन चाहिए, मॉडरेट सनशाइन, तो इसको आउटसोर्स किया गया। उससे क्या एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है फॉर द शेरपास, एंड जापान के पास जो नोट क्राइसिस था वो भी
पूरा हो सकता है, क्योंकि आफ्टर एवरी 20 years द करेंसी गोज इन फॉर रीडिजाइनिंग और नोट्स वर फर्स्ट प्रिंटेड इन 2004 वापस से रिप्लेस हो जाएगा 2024 में। तो औशिक, आई हैव वन सिंपल क्वेश्चन कि ड्रॉप इन फ्यूल्स कौन से होते हैं? व्हाट आर ड्रॉप इन फ्यूल्स? नहीं पता, बोलो। ड्रॉप इन फ्यूल्स में मतलब आपको कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट में। तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल के लिए ही एक ऑल्टरनेटिव जो हम बात कर रहे हैं डेवलप करने की, जिसमें वी आर सीइंग कि सीएसआईआर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम दे हैव आल्सो साइंड एन एमओयू विद एयर इंडिया, एयर एशिया एंड विस्तारा। तो ड्रॉप इन फ्यूल्स मतलब इट कैन बी एडेड विद नो चेंजेस नीडेड टू द एयरक्राफ्ट। हम्म तो कीवर्ड in this one is अर्गेली plant, which was already used for the local purposes, firewood, fencing, लेकिन अभी इसको बेचा जा रहा है to Japan. It is now sold to Japan at a very $60,000 मिलते हैं. 60 locals helped him to process this harvest and expect to earn around 80 lakh or $60,000. Sherpa hopes to produce 20 of the 140 tons that Nepal will be shipping to Japan. 140 tons. Ocean heat, sea surface temperature, it is increasing, ocean acidification is increasing. उसके कारण कोरल ब्लीचिंग हो रहा है. तो वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग सेकंड मेजर कोरल ब्लीचिंग इवेंट इन 10 years. Australia, Florida, they are risk of dying following the month of record ocean heat. तो urban heat effect, it is not only on the land but also in the sea. क्यों होता है? क्योंकि एल नीनो के कारण भी होता है. और दूसरे, जब मोर एंड मोर कार्बन इज sucked into the sea और को sequestrate करना पड़ता है, तो द ओशन टर्न्स इनटू एसिडिक कंडीशन, एसिडिक सॉल्यूशन. उसके कारण हीट और हो जाता है. कोरल के मरने से several heat stress lead to the coral dying and the other biodiversity gets affected. Coral bleaching is documented in northern and southern hemisphere in each major ocean basin. पहले भी हो चुका है 1998, 2010, 16 और अभी. तो इसमें हम जब इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करते हैं रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ कोरल्स, तो कौन सा कन्वेंशन है? बात करो. साइट्स कन्वेंशन के अंडर आता है कोरल रीफ प्रोटेक्शन, ठीक है. जिसको वी आल्सो नो इट एज वॉशिंगटन कन्वेंशन। तमिलनाडु एग्जाम्पल मॉडल है डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन दो तरीके से होता है, टॉप डाउन मैकेनिज्म, प्लानिंग कमीशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, हेवी इलेक्ट्रिक्स, हेवी इंडस्ट्रीज, जो इंडिया ने किया 1950-60s में, सेकेंड फैमिली प्लान. दूसरा है कि डिसेंट्रलाइज हमेशा इंसेंटिव देके एमएसएमई को कैसे सपोर्ट करेंगे. तो इसमें एग्जाम्पल है क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन. जापान हैज जस्ट लार्ज इंडस्ट्री बेसिस और it was the transformation was brought by medium scale businesses rather than large business houses. So it is very important model, decentralized industrialization model, entrepreneurship from below. For example, comparative spinning mill, foundry, compressor, Dindigul, GI tag, Sivaski, fireworks, matches, printing industry. तो इसमें कास्ट का रोल भी है. तमिल ब्राह्मण ओन्ड हाउसेस, नायर से लेकर के अलग अलग, क्रिश्चियन दे आर इन्वेस्टिंग इन एची मसाला, मुस्लिम इन द फरीदा ग्रुप. तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कास्ट रिलीजन दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू सच सक्सेस. और वो इट इज ड्रिवन बाय द मीडियम स्केल बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम द बिलो. And they are coming in the
semi urban industry, providing employment to the people surrounding villages. एग्जाम्पल, रूरल अर्बन माइग्रेशन का जब बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट स्मार्ट विलेज, वी टॉक अबाउट सेल्फ सफिशिएंसी इन विलेज। तो इसमें लिखा हुआ है कि क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ की टू रिड्यूस द माइग्रेशन। तो इसमें कैसे, क्योंकि सेमी अर्बन, अर्बन चेन्नई, बीच में कोई विलेज होंगे, तो बीच वाले पार्ट में अगर इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो इट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस हु माइग्रेट माइट हैव अदरवाइज माइग्रेट टू बिग सिटीज। डाइवर्सिफिकेशन होता है जॉब्स and reduce the dependency on the farming sector. For example, knitwear industry, Tirupur, 8 lakh people have been given employment. तो उसको लिख सकते हैं knitwear industry, जिसमें मोस्ट ऑफ द 84% women है। तो ओवरऑल जो भी इंडस्ट्री का नाम है इसमें लिख सकते हो, लिख आप डॉक में डाल दो एक बार। क्यों एग्जाम्पल लिया, गुजरात मॉडल है, एक तमिलनाडु मॉडल। गुजरात मॉडल में क्या है कि इट इज मोर इंडस्ट्रियलाइज, 43% इंडस्ट्री से आता है। तो दोनों का डिफरेंस है, वहां पर टॉप डाउन मैकेनिज्म पे फोकस किया गया। बिग बिग कॉर्पोरेट सेक्टर, अमूल से लेकर के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, डायमंड इंडस्ट्री बड़े, सब टॉप डाउन है। यहाँ पर बॉटम्स अप है, स्मॉल इंडस्ट्रीज, फायर क्रैकर, सेफ्टी मैच। तो एक फेमस एग्जांपल है शिवाकशी सेफ्टी मैचेस फायर क्रैकर्स के लिए। इरोड, करूर, सलेम होम टेक्सटाइल के लिए। क्लस्टर टाउन्स, जैसे हम लोग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बात करते हैं, वैसी क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल टाउन। फिर तिरुपुर knitwear industry we have discussed. कोयम्बटूर स्पिनिंग मिल्स फाउंड्री, तो इसको दिल्ली वाटर शॉर्टेज 290-300 mgd, रिक्वायरमेंट 1200, लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ 990 हो रहा है। तो इसमें देखा है क्यों ऐसा नहीं है, एक्वाफायर रिचार्ज नहीं है। जो कल पढ़े इसमें हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया दिल्ली गवर्नमेंट कि आप जो भी बोल रहे हैं कि लोकल वाटर बॉडीज को इस्टेब्लिश करेंगे, इतने सारे वाटर बॉडीज को आप अपने प्रोटेक्शन के अंदर लाया, लेकिन रियलिटी में ग्राउंड पे आप प्रोटेक्ट कर ही नहीं रहे। उसमें पोल्यूशन है, एल्गी फॉर्मेशन है, प्लास्टिक फेंका जाता है उसके अंदर में। तो वी हैव डिस्कस कि क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए टू रिड्यूस द वाटर क्राइसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वाफायर रिचार्ज फोकस करना चाहिए, RWA एसोसिएशन को यूज करना चाहिए फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ सच वाटर बॉडीज, और कंप्लेन कर सकते, कंप्लेन कर सकते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ द ग्रीन प्रोटोकॉल, लोकल ऑडिटिंग होना चाहिए रिगार्डिंग द वाटर बॉडीज। अर्बन मनरेगा, जिसमें आप पॉन्ड क्रिएट कर सकते हो। STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इस्टेब्लिश कर सकते हो। इसमें ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर होना चाहिए। अभी फोकस मोस्टली किया जाता है क्लोरीन पर, तो क्लोरीन डिमांड बढ़ जाता है, क्लोरीन का शॉर्टेज हो जाता है, इसी कारण कम हो जाता है। तो ओवरऑल ऑल्टरनेट मेथड ऑस्मोसिस से लेकर के अलग अलग एरियाज में कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन में फोकस कर सकते हैं, हीटिंग एंड प्यूरिफिकेशन अलग अलग टाइप से हो रहा होता है, वी कैन यूज दैट। फिर अवेयरनेस रिगार्डिंग वाटर कंजर्वेशन इन ईच सोसाइटी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो बाकी जगह बात कर सकते हैं। अर्बन मनरेगा, जिसमें आप पॉन्ड क्रिएट कर सकते हो, कर लो। तो करेंटली द बॉल इज इन द नीति आयोग गवर्नमेंट कोर्ट, वो कैसे इसको डील करेंगे, बिकॉज 300 मिसाइल हैव बीन टारगेटेड ऑन द इजराइल, इट हैज वायलेटेड द सॉवरेनिटी प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर। तो इसराइल पर डिपेंड करता है, इट इज ओनर्स ऑन इसराइल हाउ इट यूजेस सच काइंड ऑफ अटैक, और वो क्या ऑफेंसिव में जाएंगे या फिर वो मिटिगेट कर ले। क्योंकि अगर इसराइल ने अटैक किया तो ओवरऑल उसका रिपरकेशन बहुत बड़ा है इन दैट रीजन। It will affect the Abraham Accord. It will affect the overall energy security, IMEC corridor, destabilization of region. It will affect the Indian diaspora. तो
इसलिए इंडिया has called for de-escalation, exercise of a restraint and return to a part of diplomacy, India has said. तो 17 इंडियन क्रू दैट हैव बीन डिटेन्ड कहां पर? इजराइल लिंक एक शिप था MSC एरीज, उसको ईरान ने डिटेन किया, तो उसके अंदर में क्रूज जो थे इंडियन क्रूज थे, क्योंकि पता है कि 10% ऑफ द सी फेयर इंडियन है, तो मोस्टली दे एम्प्लॉयड इन द वेस्ट एशिया एंड यूरोपियन रीजन। तो ईरान ने बोला कि आप जा सकते हो, बात कर सकते हैं। तो ये न्यू डेटा लॉ, अ बैरियर टू जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच, डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट. It is largely based on a user giving consent for the processing of their personal laws, but it exempts the journalist activity from privacy obligation, notifying user or taking the consent before their personal data. Three previous day of the period exempted, लेकिन अभी बात हो रहा है DPDP Act. It empowers the government to call for information for any data processed in India कि आप if data is not according to what the laws requires, तो गवर्नमेंट उसको मैंडेट कर सकते हैं कोई कंपनीज को कि आप मेरे को डेटा दीजिए। तो उससे इट विल इम्पैक्ट द कॉन्फिडेंशियल प्रिंसिपल दैट जर्नलिस्ट अपहोल्ड, कि बोलते हैं कि सोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया, तो सोर्स बताना पड़ेगा, रिसर्च डॉक्यूमेंट बताना पड़ेगा। इट विल इम्पीड अ जर्नलिस्ट एबिलिटी टू डिस्चार्ज द रोल एज अ फोर्स स्टेट। तो एक इशू है इसमें। अभी देयर इज नो क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द पब्लिक कंसल्टेशन अराउंड द proposed laws. It should be transparent open, but none of the comment has been released in the public domain, जो भी कमेंट दिया गया था। तो पब्लिक कंसल्टेशन होना चाहिए और बताना चाहिए, सेकेंड, और अपील भी होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू एग्जेम्प्ट एनी डेटा प्रोसेसर फ्रॉम एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ, और अपील भी नहीं कर सकते इसमें। तो ओवरऑल उसमें तीन ही हाईलाइट है। पहली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन फॉर अ डेटा प्रोसेसर, इट विल इम्पैक्ट द जर्नलिस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। सेकेंड, पब्लिक कंसल्टेशन होना चाहिए था इसमें, तो हुआ नहीं अभी, और उसको जो डेटा है उसको ओपन सोर्स में रखे नहीं। और थर्ड, अपील मैकेनिज्म, उस पर फोकस नहीं किया। तो एक फैक्ट जिसमें को ऐड करना है अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में, इट वाज इनिशियली साइंड बिटवीन यूएई, बहरीन, इजराइल, mediated by the US. Now Sudan and Morocco has also joined it. Arctic Imperative, Indian Ocean Research for Polar Research, it has sent to Arctic. Arctic में नॉर्थ में हिमाद्री, साउथ में मैत्री और भारती, बस ये आता है। आर्टिक के हिसाब से कोई भी ऐसा नहीं है, नहीं आर्टिक है ना, आर्टिक में हिमाद्री, अंटार्कटिक में गार्गी और भारती। इसमें अंटार्कटिक ट्रीटी है, तो इसमें आर्टिक में है नहीं ऐसा कोई। आर्टिक सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर सेल्वार्ड ट्रीटी हुआ था, Svalbard ट्रीटी इन पेरिस, विच टॉक्ड अबाउट द प्रिस्टीन रीजन ऑफ द आर्टिक, कैसे कंजर्व करना चाहिए। आर्टिक काउंसिल